Hello my dear students, today we are going to solve worksheet 6 of chapter number 8, triangle and its property, and the topic of this worksheet is altitude and orthocenter of a triangle. What is altitude? What is orthocenter? Before starting the worksheet 6, we will understand these two terms. So, to understand these two terms, we are going to draw three. Okay, to find altitude and orthocenter of a triangle, we are going to draw three types of triangle. The first one is acute angle, the second one is right angle, and the third one is obtuse angle, so that we can understand the properties of altitude and orthocenter of a triangle. So firstly I am going to draw an acute angle as well as equilateral triangle, because जो हमने properties prove करनी है वो equilateral triangle के केस में भी prove करनी है और isosceles triangle के केस में भी prove करनी है, तो हम सिर्फ equilateral triangle बना लेते हैं. So firstly I am going to draw a line segment which is of length 6 centimeter. अब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी 6 सेंटीमीटर की, बिकॉज आई हैव टू ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो आई विल टेक द हेल्प ऑफ अ कंपास एंड मेजर a length of 6 centimeter, as you can see. So firstly I am going to draw an arc with one and from one end of the line segment, and then from the second end of the line segment. Now I am going to join the point of intersection with the first end of the line segment. Now with the second end of the line segment. Now this is an equilateral triangle. Let us give name to this triangle. The name of the triangle is ABC. I have to find what is altitude. To find the altitude, firstly there is need to understand the definition of altitude. So an altitude is ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है दैट इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स, जो वर्टेक्स से बनाया जाता है ऑफ अ ट्राइंगल, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड. अगर मैं किसी वर्टेक्स ए की बात करूं तो इसकी अपोजिट साइड है बी सी, तो इस वर्टेक्स से जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी टू द साइड बी सी, दैट इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड. If I talk about the vertex B, इसकी opposite side है BC. If I draw a line segment which is perpendicular to its opposite sides AC from the vertex B, this is called the altitude. And if I talk about the vertex C, तो इसकी opposite side है AB. तो जब मैं C से एक perpendicular line AB पर draw करूँगी, that is called the altitude of the triangle. ओके, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ एन एल्टीट्यूड. तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते कैसे हैं? अगर मुझे किसी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सो हाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट? फर्स्टली आई विल ओपन द कंपास सो दैट आई कैन ड्रॉ द आर्क विच कट द अपोजिट लाइन सेगमेंट at 2 points. Let us give name to these 2 points, D and E. Okay, now I am going to bisect this arc from the point E, and this arc is from the point D, because मुझे इस arc को bisect करना है. जो इस arc को bisect करके point आएगा, this, और फिर वो जो line segment बनेगी that is perpendicular from the vertex C. So let us join. इसको भी हम नाम दे देते हैं F. So CF is the perpendicular. यहाँ पर हम डॉटेड बना देंगे because it is not required. इसे हम डार्क बना देंगे. So CO is the perpendicular. अगर आप इसे D से भी मेजर करोगे या कंपास से मेजर करोगे, this angle is of 90 degree. तो CO जो हमारा बना है that is the perpendicular from the vertex C on the line AB. इसी तरह से if I want to draw a perpendicular from the point B, तो फिर मुझे क्या करना होगा? I have to draw an arc which intersect the opposite line segment at 2 points. Now I am going to bisect this arc. One arc from one end point and another arc with the same length, which is of the same length, from the other end. Now I am going to join from the point of intersection
to the vertex. यहाँ पर I am going to draw a dotted line because it is not required, and here I am going to draw a dark line, and this I can name it I. So BI is another perpendicular from the vertex B on the side AC. If I want to draw another perpendicular, so I have to draw another arc from the vertex A on the side which is opposite to A, that is BC. Then I will try to bisect it. So this is the point of bisection. Now I am going to join the vertex A by this point of intersection. Here a complete line, and here I am going to draw a dotted line. So this is the altitude from the vertex A to its opposite side. So these three are the altitude which are drawn from the vertex to its opposite side, which is perpendicular, or I can say from the vertex, a line segment which is started from the vertex and it is perpendicular to its opposite side. Okay, these are the three altitude which is required in this worksheet. And what is orthocenter? The point of concurrence of these three altitude is called, I can name it by K. This point K is the orthocenter. This is the point of intersection of its altitude. ठीक है? Okay, so the next point is, now I am going to explain the properties. The first one is the altitude of an equilateral triangle are equal. ये कह रहा है कि इसके जितने भी मैंने altitude draw किए हैं सारे की सारों की लेंथ इक्वल होने वाली है. So let's measure it. Firstly, I am going to measure the length of CO. इसकी length again it's 5.1. So the length of OC is 5.1 centimeter. If I talk about BI, because ये equilateral triangle है तो इसका ortho center और median same ही होने वाला है. It is again 5.1 centimeter. It is the length of BI. If I measure the length of CO, it is already measured. The length of BI, it is already measured. I have to measure the length B. The name of this point is AP. So the length of AP is again 5.1 centimeter. तो मैंने क्या प्रूव करना था? I have to prove that the altitude of an equilateral triangle. Equilateral triangle के altitude मैंने बना लिए. These three are equal. तो first property proof. The second one is altitude drawn on an equal sides of an isosceles triangle are also equal. जैसे हमने median draw किए थे वैसे ही हम isosceles triangle के अंदर altitude draw कर देंगे. कैसे draw करेंगे? हर vertex isosceles triangle में भी हम हर vertex से, क्योंकि इसने क्या बोला है, altitude drawn on equal sides. इक्वल साइड्स की बात की है तो अगर मैं इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लूँ, इसकी लेंथ को मैं बड़ा मान लूँ, तो फिर मैं परपेंडिकुलर दोबारा से इन्हीं दो साइड्स पे बनाऊंगी बिकॉज ये दोनों की दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं. तो फिर यहाँ से जब मैं बनाने लगूंगी तो यहाँ से दोबारा से मैं एक आर्क बनाऊंगी विच बाइसेक्ट द फर्स्ट इक्वल साइड इनटू टू पार्ट्स, जहाँ पर दो पॉइंट्स पे इसे बाइसेक्ट करती है. फिर दोबारा से इसका मैं बाइसेक्टर निकाल लूँगी. देन आई विल जॉइन. फिर मेरे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा. सिमिलरली फ्रॉम द वर्टेक्स बी आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन आर्क विच बाइसेक्ट द अपोजिट साइड इनटू एट 2 पॉइंट्स, जो इसे बाइसेक्ट करेगा 2 पॉइंट पे. फिर इन दोनों पॉइंट्स को मेन पॉइंट मानकर मैं दोबारा से आर्क लगाऊंगी, इसे बाइसेक्ट करूंगी, देन आई विल जॉइन इट. फिर जब मैं इसकी लेंथ को मेजर करूंगी देन आई विल डेफिनेटली गेट दैट द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द इक्वल साइड, यानी जो दो मैंने बनाए तो ये वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा. इफ दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये दोनों साइड्स इसकी इक्वल है, जो दो साइड्स इक्वल है उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो फिर वो लेंथ क्या हो जाएगी हमारी इक्वल. द नेक्स्ट इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. ये एक्यूट एंगल ही है क्योंकि इसके सारे के सारे एंगल लेस देन 90 हैं, क्यूट है. तो फिर इसका जो ऑर्थो सेंटर है हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? इट लाइज इन द इंटीरियर, अंदर वाली साइड है. ये वाली प्रॉपर्टी भी इसी से क्लियर हो गई. Okay, our property number 4 is the orthocenter of a right triangle is the vertex of the right angle. मतलब जो orthocenter आने वाला है ना, अगर मैं right triangle पर orthocenter draw करूँ, orthocenter क्या होता है? Point of intersection of altitude, जहाँ पर तीनों के तीनों altitude मिलते हैं, उस point को वो कहाँ पर होगा?
वो होगा वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। चलो हम चेक कर लेते हैं क्या ये बात ट्रू है या नहीं है। सो फॉर दैट पर्पज़ आई हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल। तो मैं राइट एंगल बनाती हूँ। राइट एंगल हम कैसे बनाएंगे? फर्स्टली आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन लाइन सेगमेंट, फिर उसके बाद आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल आप कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं, आप डी की हेल्प से भी बना सकते हैं। सो हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ a 90 degree angle using a compass. Firstly, an arc of 60 degree, then an arc of 60 degree. साथ में मैं बाइसेक्ट करने वाली आर्क भी बना रही हूँ। नाउ 120 और 60 को जब हम बाइसेक्ट करेंगे देन आई गॉट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, मेरे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया। नाउ आई एम गोइंग टू जॉइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क एंड द पॉइंट। तो मेरे पास ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, अब इसकी लेंथ कितनी भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। राइट एंगल की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए कि इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, वो है। ठीक है, सो नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है? आई हैव टू फाइंड द ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? आई हैव टू फाइंड द एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? अभी हमने लास्ट समय भी निकाला था। जिस पॉइंट पर मुझे एल्टीट्यूड निकालना है, इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देती हूँ दिस इज ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मुझे एल्टीट्यूड जिस वर्टेक्स के अबाउट निकालना है, अगर मुझे वर्टेक्स B पे एल्टीट्यूड निकालना है तो मैं क्या करूँगी? इसकी अपोजिट आर्क पर एक आर्क बनाऊंगी और उसे बाइसेक्ट कर दूंगी। इसके वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक आर्क बनाऊंगी और एक ऐसी आर्क जो उस साइड को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हो। फिर मैं इस आर्क के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बाइसेक्ट कर दूंगी। देन आई विल गेट, मुझे क्या मिल जाएगा? ऑर्थो सेंटर एट पॉइंट B। ठीक है, ये मेरा ऑर्थो सेंटर आ गया जो पॉइंट B पर मैंने बनाया। थोड़ा सा हिल गया, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक ऑर्थो सेंटर मैंने बना दिया। अब मुझे नेक्स्ट पॉइंट C पर बनाना है। सॉरी, एक एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ कर दिया, मुझे पॉइंट C के अबाउट बनाना है। पॉइंट C की अपोजिट साइड क्या है? AB। लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखेंगे, जब आप इस पर बनाना चाहेंगे, क्या बनाना चाहेंगे? एल्टीट्यूड बनाना चाहेंगे, तो आपको क्या मिलेगा कि जब आप इस पे आर्क ड्रॉ करेंगी ना, आप चाहेंगे कि ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, तो ये जो आर्क है ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। बिकॉज अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स नहीं है तो हम उसे बाइसेक्ट कैसे करेंगे? इसलिए हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस लाइन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पर बनाएंगे डॉटेड लाइन। क्यों बनाए हमने डॉटेड लाइन? बिकॉज दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल लाइन। ये सिर्फ बाइसेक्शन के लिए और ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए हमने यूज़ करनी है, हमें चाहिए, इसलिए हमने इसे बनाया है। इट इज़ एन इमेजनरी लाइन, यहाँ पर ऐसी कोई भी लाइन नहीं है। तो फिर अब मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है AB। अब मैं इसे लाइन सेगमेंट नहीं बोलूँगी क्योंकि इसकी प्रॉपर लेंथ नहीं है। AB एक लाइन है। ठीक है, AB लाइन है जिसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है। तो इस पॉइंट को, इस लाइन को मैंने 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया एक आर्क की हेल्प से। अब मैं इसे बाइसेक्ट करूँगी। हाउ आई एम गोइंग टू बाइसेक्ट इट? बाय यूजिंग अ कंपास। एक आर्क फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, आर्क और लाइन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, फिर सेकंड दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ठीक है, देन आई एम गोइंग टू मर्ज इट। जब मैं इसे ज्वाइन करूँगी, इसे मैं डार्क बनाऊंगी बिकॉज दिस इज़ द रिक्वायर्ड ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो मुझे क्या नज़र आया कि जो इसका ऑर्थो सेंटर है, जो मैं वर्टेक्स C से बना रही हूँ, ये तो लाइन ही है जो हमें चाहिए थी। तो एक तो एक तो एल्टीट्यूड हमारा BC को एक्सटेंड करके आ गया, या मैं BC भी मान सकती हूँ। एक मेरा जो ऑर्थो सेंटर है वो मैं इसे, F को हमने यूज़ नहीं किया तो मैं BF ले लेती हूँ। ठीक है, तो हमारे ऑर्थो सेंटर एक तो आ गए BF, जो वर्टेक्स B से हमने बनाया था। जो हमने वर्टेक्स C से बनाया वो आया हमारा CB। देखो, जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वहीं से हमारा ऑर्थो सेंटर आ रहा है। अगर मैं नेक्स्ट ऑर्थो सेंटर A पॉइंट से बनाना रहता है, A वर्टेक्स से बनाना रहता है, तो मैं वहाँ से भी बना लेती हूँ। इस केस में भी मुझे एक्सटेंड ही करना पड़ेगा। लेट्स हैव अ लुक। देखिए, अगर मुझे A से बनाना है तो इसकी अपोजिट साइड क्या है A की? BC।
अगर मैं बी सी पर एक आर्क बनाऊं जो इसे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, ऑर्थो सेंटर हमारी हेल्प कर गया, अब मुझे एक्सटेंड करने की ज़रूरत है नहीं। अब मैं क्या करूँगी, इसे आई एम गोइंग टू बाइसेक्ट दिस आर्क। जब मैं इसे बाइसेक्ट करूँगी तो मुझे क्या नज़र आएगा कि जो हमारा ऑर्थो सेंटर है, जो कैसे बना है, वर्टेक्स को इस पॉइंट से मिलाने पर वो तो हमारी साइड ही है, दैट इज़ आवर साइड। तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा आ गया ए बी, ए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ई अभी तक हमने नाम नहीं दिया था, तो ए पर जो हमारा ऑर्थो एल्टीट्यूड आया है दैट इज़ ए ई। तो अब तीनों के तीनों हमारे, एक तो एल्टीट्यूड हमारा दिस वन है, एक ये है और एक ये है, तो एक कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमारा ऑर्थो सेंटर कहाँ पे आ रहा है, इट इज़ द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। इसको थोड़ा सा आप क्लियर बनाएंगे तो फिर बिल्कुल परफेक्ट लाइनिंग आएगी। कंपास थोड़ी सी हिल रही है इसलिए थोड़ा सा एरर आ गया, अदरवाइज यू हैव टू मेक अ वेरी क्लियर डायग्राम, ठीक है। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 ऑर्थो सेंटर, एक तो ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला। सो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो ऑर्थो सेंटर होता है ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज द वर्टेक्स, वो वर्टेक्स होता है किसका, राइट एंगल का। Our last property, property number 5 is the ortho center of an obtuse angle। जब obtuse angle triangle की बात करूँगी तो इसका जो ortho center होगा ना, it is in the exterior of the triangle। मुझे ये प्रूव करना है कि इसका ortho center जो है वो ट्राइंगल के बाहर बनेगा। तो पहले फर्स्टली आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा हो। 90 यहाँ पे बनने वाला है, हमने 90 से थोड़ा सा बड़ा बना दिया। सो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड द नेम ऑफ दिस एंगल इज ए बी सी। तो ये क्या कह रहा है कि जो इसका ऑर्थो सेंटर होगा ना वो बाहर वाली साइड बनेगा। तो ऑर्थो सेंटर बनाने के लिए पहले मैं वर्टेक्स सी से एक ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करती हूँ, इसे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर दिया। यही चाहिए होता है ना ऑर्थो सेंटर के लिए, जिस वर्टेक्स से मुझे ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करना है इसके अपोजिट साइड को मुझे अपोजिट साइड को एक के ऊपर एक ऐसी आर्क बनानी होती है जैसे जो इसे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। फिर मैं इसे बाइसेक्ट कर दूंगी, बाइसेक्ट करना होता है मतलब हाफ करना उसका। नाउ आई एम गोइंग टू जॉइन इट। सो दिस इज़ माई ऑर्थो सेंटर, सॉरी दिस इज़ माई एल्टीट्यूड एट द पॉइंट बी। अगर मुझे वर्टेक्स सी पर एल्टीट्यूड बनाना है तो फिर मुझे क्या करना होगा, एक आर्क ड्रॉ करनी होगी जो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, बी है, इसे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। लेकिन जैसा कि हमने राइट एंगल में भी देखा था तब भी ऐसा कोई केस बन नहीं रहा था कि 1 पॉइंट पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, तो हमने लाइन एक्सटेंड की थी। यहाँ पर भी हम लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे बिकॉज दिस इज़ ओनली एन इमेजनरी लाइन, ठीक है। फिर इस डॉटेड लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, जहाँ पर कट किया है, वहाँ से हम इसे बाइसेक्ट कर देंगे, ओके। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन बिकॉज सी, पॉइंट सी के अबाउट हमने ऑर्थो सेंटर ड्रॉ किया है, तो हम यहाँ से सी को मर्ज कर देंगे और हमारे पास एक और ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। हमने पहले वाले ऑर्थो सेंटर का नाम नहीं दिया, इसे हम बी ई का नाम दे देते हैं और इसे हम सी एफ का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे ऑर्थो सेंटर क्या आ गए, एक तो बी ई और सी एफ, ये दोनों, इन दोनों को हमें मिलाना पड़ेगा बिकॉज ऑर्थो सेंटर को जब हम मर्ज करेंगे तभी तो हमें जब एल्टीट्यूड्स को हम मर्ज करेंगे किसी ना किसी पॉइंट पे एक्सटेंड करके मिलाएंगे, कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, तभी हमें ऑर्थो सेंटर मिलेगा ना। तो ये दोनों की दोनों एल्टीट्यूड तो कहीं ना कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया और इस ऑर्थो सेंटर को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया। अब ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम एक और पॉइंट किस पे, देखो हमने सी पे बना लिया, हमने बी पर बना लिया, अब एक ही टर्न है तो हम ए पर भी ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करने वाले हैं। हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ एन ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ए से उसके जो अपोजिट साइड है, कौन सी है इसकी अपोजिट साइड, बी सी, बी सी पर हम
एक ऐसी आर्क ड्रॉ करेंगे जो बी सी को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। दोबारा से बी सी को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर पा रही तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। तो हम बी सी लाइन को डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन की फॉर्म में थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। अब मुझे दिख गया कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, अब मैं कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू बाइसेक्ट इट, मैं इसे बाइसेक्ट कर दूंगी। नाउ आई गॉट द ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स ए, इसको भी हम नाम दे देते हैं, हमने ई एफ दे दिया, अब हम जी दे देते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा टीटा हो रहा है, इसे हम जी बना देते हैं, ठीक है। सो अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या नज़र आया, जहाँ पर तीनों के तीनों ऑर्थो सेंटर मिल रहे हैं, इसको मैंने ए जी नाम दिया है। तो बी एफ, बी ई, सी एफ और ए जी, ये तीनों के तीनों हमारे एल्टीट्यूड हैं और ये किस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको हमने नाम दे दिया ओ। लेकिन मुझे क्या नज़र आ रहा है कि ट्रायंगल तो अंदर वाला था ए बी सी, लेकिन इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ बन रहा है, बाहर बन रहा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव हो चुकी है कि द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल यही है ना 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए इसका जो ऑर्थो सेंटर है ये एक्सटीरियर मतलब बाहर वाली साइड लाई करता है। लेट्स स्टार्ट वर्कशीट 6 ऑफ चैप्टर नंबर 8। तो फर्स्ट फिलअप क्या है, एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। जो एल्टीट्यूड होता है किसी भी ट्राइंगल का इज़ अ डैश फ्रॉम अ वर्टेक्स, मतलब जब भी चाहे हम मीडियन की बात करें चाहे हम एल्टीट्यूड की बात करें तो वो होता क्या है, मेनली इट इज़ अ लाइन सेगमेंट। सो ये हमने डेफिनेशन में भी किया था, एल्टीट्यूड की डेफिनेशन में। एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है इज़ अ लाइन सेगमेंट। वो क्या होता है, इट इज़ अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स, वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है। और होता क्या है यहाँ पर, जब हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था वर्टेक्स बी से और इसकी अपोजिट साइड ए सी पर, तो ए सी पर क्या था, ये परपेंडिकुलर। सो एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स, जो एक वर्टेक्स से बनाया जाता है और क्या होता है, इट इज़ परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड को अगर आपको समझना है सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको अच्छे से लर्न भी करनी होगी। द नेक्स्ट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज, यहाँ पर हमने एल्टीट्यूड बनाए थे, वर्टेक्स बी से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था इसके अपोजिट साइड ए सी पर, सी से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था इसके अपोजिट साइड ए बी पर, वर्टेक्स ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था इसके अपोजिट साइड बी सी पर। तो जहाँ पर ये पॉइंट कॉन्करेंस हो रहे थे, जहाँ पर ये पॉइंट मीट हो रहे थे, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, ऑर्थो सेंटर। सो द पॉइंट ऑफ कंकरेंस, जहाँ पर पॉइंट मिलते हैं, किसके पॉइंट मिलते हैं, एल्टीट्यूड के, मतलब जहाँ पर तीनों के तीनों एल्टीट्यूड जाकर इंटरसेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर। द नेक्स्ट इज इन अ राइट ट्राइंगल। जब मैं राइट ट्राइंगल की बात करती हूँ, द ऑर्थो सेंटर इज एट, ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है, जब हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया था तो इसका एल्टीट्यूड क्या आया था, पॉइंट बी पर। इसको मैंने स्पेसिफिक नाम भी नहीं दिया था क्योंकि ये पॉइंट बी पर ही बना था। सो द ऑर्थो सेंटर, जो इसका ऑर्थो सेंटर होता है राइट एंगल का, वो कहाँ पर होता है, इट इज़ एट द वर्टेक्स, कहाँ पर होता है, वर्टेक्स पर, किसकी वर्टेक्स पर, वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, ठीक है, जहाँ पर राइट एंगल बन रहा होता है उसी की वर्टेक्स पर, जहाँ पर राइट एंगल बन रहा होता है उसी वर्टेक्स पर ही होता है। इट इज़ एट द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स पर है, किसके वर्टेक्स पर, जहाँ पर हमने राइट एंगल बनाया था, दूसरे वर्टिसेस पे नहीं है जहाँ पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था। द नेक्स्ट इज द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ नहीं करके दिखाया था, एक बार फिर हम ये बाद में करेंगे। द 3 एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने बनाया था, इसके एल्टीट्यूड थे बी आई, सी ओ
और AP, इन तीनों की जब मैंने लेंथ मेज़र की थी तो वो क्या आई थी 5.1। तो तीनों की तीनों लेंथ क्या है सेम। तो यहाँ पर भी मैं लिख सकती हूँ कि जो एल्टीट्यूड है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वो सब क्या होते हैं इक्वल। इसी तरह से जब मैं इस फिगर को ड्रॉ कर सकती हूँ तो मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल को भी ड्रॉ करूँगी, उसके एल्टीट्यूड्स निकालूंगी और एल्टीट्यूड मुझे इक्वल साइड्स के निकालने हैं। अगर ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी ये वाली दोनों की दोनों साइड्स इक्वल है तो मुझे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फिर इन दोनों की लेंथ को मेजर करना है। देन आई विल फाइंड दैट बोथ द एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ठीक है, दिस इज द वर्कशीट 6 ऑफ चैप्टर नंबर 8।